Good morning, my dear students. Welcome to our English class. As you know, we started term 2 syllabus. In the term 2 syllabus, we are doing chapter 10, the Gir Forest Trail. In that Gir Forest Trail, we know about many types of animals and plants. Okay, we enjoyed reading and explanation, and we completed question answers also. And we completed scene passage 1 and 2 in our worksheet. Today I am going to do grammar session. In this grammar you will learn about preposition. Preposition means they tell us the location of persons or a thing. Some commonly used preposition of place or preposition position are in, at, on, under, behind, between, among, in front of. We use at to show exact location of a person or a thing. Okay? हम at कब यूज करते हैं? Exact location of a person or a thing. Now, preposition. Everyone knows that preposition, they tell us the location of person or a things. Preposition means ये जो है वर्ड, ये हमें जो वस्तु या पर्सन कहाँ पे है वो हमें बताता है. The chital run through the forest. The create moves away from the herd. Means through means अंदर. कहाँ पे है? Preposition. जो ब्लू लाइन में जो लिखा गया है वो प्रीपोजिशन है. अवे फ्रॉम. नाउ वी यूज वर्ड्स लाइक थ्रू, अवे फ्रॉम, इनटू, अक्रॉस, आउट ऑफ एंड सो ऑन टू टॉक अबाउट movement and direction. We use them to say how someone or something moves and where they moved to. They are called preposition. Where they moved to मीन्स उन कहाँ गए और कौन से प्लेस में गए वो बताने के लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन. ओके, सही जगह हम बताने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं. द बेबी ट्रैवल्ड अक्रॉस द फ्लोर. बेबी जो ऐसे अपने पेट की बल पे चलती है ना, कैसे? अक्रॉस द फ्लोर, नीचे ज़मीन पर. अक्रॉस मीन्स ज़मीन पर ट्रैवल कर रही थी. पुट द पेपर थ्रू द होल इन द बॉक्स. जो होल है उसके अंदर से पेपर को रखो. ओके, नाउ everyone knows it na. Preposition, they tell us the location of a person or a thing. ये जो प्रीपोजिशन जो वर्ड है वो हमें पर्सन या थिंग कहाँ पे है और कौन से प्लेस में है वो हमें बताता है. Prepositions are, many prepositions are there: under, behind, between, among, in front of, in, at, on, away, into, across, out of. These all are a preposition. Underline the words that show direction or a movement. You have to underline. This exercise is for you all. You have to underline this preposition. The dog ran into the lake to find the ball. Where ran dog? Dog कहाँ पे भाग गया बॉल ढूंढने के लिए? Into the lake. यहाँ पे लेक के अंदर डॉग बॉल ढूंढने के लिए गया. सो प्रीपोजिशन इज into. I walked all around the school but couldn't find my brother. मैं पूरा स्कूल में वॉक किया, अराउंड घूम के, स्कूल को पूरा घूमा, बट मेरे ब्रदर को ढूंढ नहीं पाया. जो विच वन इज प्रीपोजिशन हियर? अराउंड. द शार्प सीजर easily cut through the thick cloth. See here, the sharp scissor, जो शार्प
सीजर जो होती है इजीली क्लॉथ को बीच में से कट कर सकती है, जितना भी थिक मोटा क्लॉथ हो उसको कट कर सकती है थ्रू। हाँ, तरुण्स ग्रैंडफादर लिव्स इन द विलेज अक्रॉस द रिवर। वो नदी के बाजू में वो रहते हैं। आई सॉ हिम कमिंग टूवर्ड्स मी एंड वेव्ड हिम। मैं उसे देखा मेरे तरफ आते हुए। वेव्ड मीन्स मैं अपने हाथ हिलाया, ऐसे आपको ये बता रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक ओनली yourself. First you have to read all this information of preposition, then you have to do this page number 89 in your textbook. Okay, now exercise B, you have to do this exercise also in your textbook. Okay, complete these sentences with the correct words from the brackets. आपको ए सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करना है, ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं वो वर्ड में से जो राइट आंसर है, सुटेबल आंसर है, उसको आपको इन फिलअप्स में लिखना है। ली रैन डैश टू द कार, टू और थ्रू टू, ली रैन टू द कार। द सेकेंड वन, द ट्रेन वेंट डैश द टनल, आंसर्स आर ओवर और थ्रू। ओवर मीन्स ऊपर से, थ्रू मीन्स अंदर से। द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, हम गुफा में ट्रेन जाता है, अंदर से जाता है ना गुफा के अंदर से, सो थ्रू। व्हेन द प्ले वॉज ओवर द एक्टर वॉक्ड डैश फ्रॉम द स्टेज, ऑफ और अवे फ्रॉम द स्टेज। उसका रोल का जो एक्टिंग ख़त्म हुआ तो एक्टर अपने प्लेस में से, थिएटर में से चला जाता है। फोर्थ वन, फारूक कैन स्विम डैश द रिवर क्वाइट इजीली, अराउंड अक्रॉस, अराउंड मीन्स गोल गोल, अक्रॉस मीन्स क्रॉस करना, अक्रॉस। फारूक स्विम कर सकता है। फिफ्थ वन, दे वेंट डैश द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, रेन चालू हुआ तो वो लोग क्या किए, घर के अंदर इनटू द हाउस। दिस एक्सरसाइज आल्सो यू हैव टू डू इन योर टेक्स्ट बुक ओनली. Okay, you have to do this exercise also in your textbook only. Now come to the vocabulary. These words are action words. Read these sentences. The cub ran to their mother. The cheetah leap away to safe place. The snake slithers out of the skin. Slithers का आपको मालूम है ना, slithers जो हैं, स्लिथर्स मीन्स अपने नए स्किन से पुराने स्किन से बाहर आने के लिए स्लोली जो मूव होता है उसको। वी यूज़ वर्ड्स लाइक रन, लीप एंड स्लिथर टू टॉक अबाउट थ्रू हाउ थिंग्स मूव। हम एक्शन मूव होने के लिए जो करते, रन मीन्स भागना, लीप मीन्स जंपिंग, स्लिथर्स मीन्स स्लोली मूव होना। हम चलने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो वर्ड को हम यहाँ पे मूवमेंट वर्ड्स बोल रहे हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ अ मूवमेंट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। जंप्ड, डैश्ड, क्रेप्ट, स्किप, जॉग, स्लाइड, रोल्ड। जंप्ड मीन्स कूदना, डैश्ड मीन्स धक्का, एक दूसरे धक्का करना, क्रेप्ट मीन्स ऐसे नीचे पेट के बल से जाना, स्किप मीन्स जंप करना, जॉग दौड़ना और चलना दोनों साथ में, स्लाइड मीन्स स्लाइडिंग करना, रोल्ड मीन्स गोल गोल घूमना। आई कैन स्किप 50 टाइम्स इन अ मिनट। रस्सी कूद जो बोलते हैं ना स्किपिंग, वो 50 टाइम्स कर सकते हैं। द थीफ क्रेप्ट अवे फ्रॉम द हाउस। द एग रोल्ड ऑफ द टेबल एंड ब्रोक। एग रोल्ड होके नीचे गिर गया टेबल से और ब्रेक हो टूट गया। पाउल स्लाइड डाउन वाटर स्लाइड इनटू द पूल ऑफ वाटर। आप जब वाटर गेम में जाते हो तो वाटर पार्क में आपको ये सब देखने को मिलता है रोल्ड होने के लिए। ओके, केशव डैश डाउन द
corridor looking for the exam hall. Okay, the coach makes us jog around the cricket ground before we start playing. वार्म अप एक्टिविटी, जब हम डांस क्लास में जाते हैं या कोई भी एक्टिविटीज़ करने जाते हैं तो पहले वार्म अप एक्टिविटी में आपको जॉगिंग करवाते हैं, मीन्स दौड़ना और चलना दोनों साथ में कूद कूद के करते हो, उसको वार्म अप एक्टिविटी बोलते हैं. द गोट्स jumped over the compound wall into our garden and ate mother's roses. goats जो है